your journey started as an Instagram influencer. Okay, Do so you like that term? Acha, it didn't start off as an influencer, पहली बात. I started in a video for Sajad Ali in 2016 when I was 15 probably. I was 15 turning 16, yeah. और तब मैंने किया था and then my friends were like, why don't you model? And I was very shy, तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं. And then I कर ली मैंने modeling करते करते. So influencer का term. I think to influence you need to, like, I don't think I influence a lot of people. मतलब आप pictures डाल के कितना influence करते हो. So this is why I don't like the term being put on me. I think I'm a public figure, sure, but influencer मतलब I don't blog, so I don't know. I influence by captions कि मैं एक अच्छे captions डालती हूँ, तमीज़दार लोगों को बातें सिखाती हूँ. Does that mean I'm an influencer? I don't know. I mean, it's a very vast term. वो तो आपकी बात ठीक है, but you've got over 500,000 followers on Instagram. ये अगर इतना आसान है और आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं समझती, तो ये कौन सी दुकान से 6 लाख फॉलोअर्स मिलते हैं मुझे बताएं. मैं भी कुछ ज़्यादा खरीदना तो नहीं चाहूँगा, वो एक गलत कॉनोटेशन हो जाती, बट मैं भी हासिल करना चाहूँगा. I think अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो हुआ है, I just got lucky with everything and I thank Allah Ta'ala and my mother for all her prayers for that. But okay, sure, maybe I influence people, but I don't think No, but how did you get 6 lakh followers? I don't know. 5,80,000 to be specific. 83? 91. ये अभी बने हैं पीछे. Of course. तो बस I think modeling की वजह से and I really don't know कि लोगों ने क्यों. I don't know, man. Why do you guys follow me? Tell Hassan, please. You were born in Lahore. Yes, I was. Born and raised in Lahore. No, I was born in Lahore. फिर I was raised in Saudi, in Riyadh. अच्छा. I moved back like 5-6 years ago. Oh, nice. तो आपका ज़्यादातर वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजरा. Yes, हम लोग 2014 में I think visit करना शुरू किया था, and then 15 में we eventually moved. ठीक है. तो ये हुआ था. तो ये usually हमने जब सुनते हैं या कुछ केसेस में पता भी है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज, वो बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं पाकिस्तानी चीज़ों के साथ. So अगर मैं अपनी बात करूं तो we get a lot of feedback on the dramas that we review from overseas Pakistanis. So growing up, were you also interested at all in the Pakistani entertainment industry, the showbiz as we like to call it? I was very young उस time पे. I think when I moved to Pakistan I was 14. तो मतलब 10 साल की बच्ची क्या ही ड्रामे देख रही होगी. I used to read a lot of books. I have never really watched TV इतना ज़्यादा. तो बुक्स में मैं ज़्यादातर मगन रहती थी, तो इतने ड्रामाज और मूवीज इतनी देखी भी नहीं मैंने ज़्यादा. घर पे भी ऐसा नहीं था. घर पे भी इतना नहीं था कि कोई ड्रामा चल रहा है. मम्मा देखा करती थी बहुत ज़्यादा, बट इतना उधर कोई सीन नहीं था मेरा ड्रामा देखने का. When I came here तब मुझे पता चला कि ओह ये भी दुनिया है, ये शोबिस की भी दुनिया है और ये ड्रामाज भी होते हैं. So correct me if I'm wrong, then ये आपके जो Instagram पे followers और ये जब बढ़ना शुरू हुआ और मॉडलिंग और ये सब चीज़, तो ये 2014-15 के बाद ही होना शुरू हुआ सब कुछ. I made my account public in 2017. 2017? I did, yeah. 18, 19, 4 सालों के अंदर ये आपने सब कुछ. Very overwhelming, yes. बहुत. What was your first post on Instagram? Like when I made it public? हाँ. मेरा एक बिलबोर्ड लगा था, एक मैंने शूट किया था, पहला बिलबोर्ड था मेरी जिंदगी का, पहला शूट और पहला बिलबोर्ड. तो उसका मैंने डाला था. उसके बाद बस बढ़ते गए, मुझे पता भी नहीं चला कब. And you started like वो brands reach out to you, unboxing, ये हो गया वो हो गया, कपड़ों के इनके साथ collaborate, उनके साथ कोई शूट, फिर टीवी सीरीज और ये सब. म्यूजिक से आपका कोई खास इंटरेस्ट है? सजाद अली साहब की आपने की वीडियो आपने बताया. Do you want me to get into the story of it? Sure. It's a very funny story. हाँ, we have all the time in the world, Meera. Okay, good. I have all the time in the world as well. अच्छा, लेकिन हुआ ये था, so like I said, I was very shy. मैं बहुत shy बच्ची थी, मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती थी किसी से. कैमरा तो मतलब दूर तक नहीं ना, वो तो मैं हाथ छुपा के पिक्चर नहीं लेते बचपन में, मैं वैसी पिक्चर्स लिया करती थी. तो मेरी एक डॉक्टर थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुआ करती थी, तो मेरी एक डॉक्टर थी, डॉक्टर आयशा उनका नाम है. उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि एक वीडियो है सजाद अली की, उधर उसमें वो यंग किड्स और यंग बॉयज़ ढूंढ रहे हैं, तुमने करना है. मैंने कहा क्या हो गया, खुदा का खौफ करो, मैं ज़िंदगी में कैमरे के सामने पिक्चर के लिए नहीं आई, तो मैं वीडियो के लिए क्या ही आऊँगी. उससे कहा अच्छा तुम ऐसी ना ऑडिशन दे दो. मैंने कहा चलो, इतना तंग करी थी वो, इतना मुझे तंग करी थी, मैंने कहा चलो कर लेते हैं. तो मैंने कहा वैसे भी कौन सा मैं हो जाऊँगी सेलेक्ट, क्या मतलब. तो मैंने एक वीडियो बनाई बहुत ऑकवर्ड सी, हाय गाइस दिस इज मीरा वली, आई एम 16 years old करके. मैंने आगे उनको ईमेल कर दी. ज़ो को, उनकी जो बेटी है वो डायरेक्टर थी, एंड ज़ो इज़ एन अमेजिंग फ्रेंड ऑफ माइन नाउ, एंड शी वाज अमेजिंग उस टाइम भी. ज़ो अली.
ज़ोली सजाद अली's daughter. Yes, the singer and the director. She's very डॉक्टर talented. आयशा ने रिकमेंड किया कि ज़ौ को अपनी वीडियो उसके भेजो ज़ौ क्योंकि को। ज़ौ इज डायरेक्टिंग। हाँ, ठीक ठीक है। है। तो खैर मैंने वीडियो भेजी, ईमेल की, एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट, एंड देन अ वीक लेटर आई गेट अ कॉल एंड आई पिक अप, और मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। तो वो कहती कि ये मेरे बात करी, मैंने कहा जी, कहती मैं ज़ौ बात कर रही हूँ। मैंने कहा ओह माय गॉड ये क्या हुआ, और मैंने लकीली ईमेल पे अपना नंबर भी दे दिया था। अच्छा, तो वो मुझे कहती मैंने आपको एक हफ्ते से ईमेल की हुई, आप ईमेल नहीं चेक करती हैं। मैं 16 साल की बच्ची हूँ, मैंने ज़िंदगी में ईमेल देखी भी नहीं है। मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखी। कहती वी वांट यू कल, अच्छा, आप आए लाइव ऑडिशन में। ओके। मैंने कहा अल्लाह मैंने क्या कर दिया। खैर आई वेंट अगले दिन। मेरे भाई शुरू में ये थे कि क्या तुम क्या करने जा रही, तुम पागल हो। खैर वो साथ मेरे आए, आई वेंट टू द ऑडिशन। उधर बहुत बुरा ऑडिशन मेरा हुआ। मैंने ज़ौ को अभी तक कहा है कि वो जला दो टेप, जो थी उसको जला दो, मार दो, आई डोंट केयर। तो उधर हम गए, आई गेव एन ऑडिशन, इट वाज अ वेरी बैड ऑडिशन, आई डोंट नो व्हाई दे पिक्ड मी। एंड देन 3 डेज कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा बस खत्म, ये था मेरा इंडस्ट्री का स्टार्ट, और खत्म, अब मैं नहीं आने वाली। बट And देन शी कॉल्ड मी, they picked you. yeah they picked me and now I'm the thumbnail of the video. So yeah ये हुआ था That's interesting. लेकिन अब इस स्टोरी के बाद 2 सवालात मेरे जी। दिमाग में आए हैं। जी। पहला तो ये कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मुझे टाइफाइड भी हो गया, सब कुछ हो गया, मैं बिल्कुल अब fit आप fine। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अब का शुक्र। अब आप ठीक है। बिल्कुल। दूसरा, डॉक्टर आयशा का क्लिनिक है का, आई एम श्योर बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस चाह रहे होंगे कि वो भी ब्रेक इस तरह की हासिल आई करें। थिंक डॉक्टर आयशा ने क्लिनिक ही चेंज कर दिया उधर से। कर दिया उन्होंने। हाँ, अब आप बताना नहीं मैं- चाहेंगी कि नहीं वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगी मैं, लेकिन मैं चाहूंगी, लेकिन आई डोंट नो उनका क्लिनिक अब कब है, कहाँ है। या बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर किसी इंसान की डेस्टिनी में कोई चीज लिखी हो तो रास्ता खुद ही बिल्कुल बन अल्लाह ताला बना जाता देता है। है। यू नेवर एक्चुअली अस्पायर्ड टू बी अ Yeah, मॉडल yeah. और अ शोबिज पर्सनालिटी। आई वाज ऑलवेज इनटू एक्टिंग, इस तरीके से कि स्कूल में प्लेस हुआ करती थी, मैं बहुत पार्टिसिपेट करती थी, बट पीपल उनके सामने जिनके साथ मैं कंफर्टेबल थी। तो मतलब मुझे शौक था, मैं देखती थी, मुझे शौक था कि मैं भी ये करूं, लेकिन मतलब मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी कि मैं कैसे करूंगी, मैं तो नहीं कर सकती। तो वही करके बस हो गया। तो फिर जब सिनफे आहन आपके पास आया, जब जी उसके बारे में बताएं कि वो कैसे आया, और जब आया तो फिर ऑब्वियसली आपने क्यों डिसाइड किया कि अब आप तैयार हैं फाइनली एक्टिंग करने के लिए? हाँ अच्छा, सो बेसिकली सना शाहनवाज द प्रोड्यूसर ऑफ सिनफे आहन, उन्होंने मुझे उनसे जब मेरी बात हुई थी, शी कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशन हम लोगों ने किया था बीच में। उन्होंने मुझे बताया कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे पहले देखा था, शी यूज्ड टू कमेंट ऑन माय पिक्चर्स एज वेल, लाइक भी करती थी, तो मैं भी थी कि अच्छा ये है कोई सना शाहनवाज, ठीक है। तो गुल आंटी हु इज़ माय अमेजिंग फैमिली फ्रेंड्स, उनके साथ हम हैं, ठीक है, और मेरी अम्मी उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो गुले राणा जी की बात हो रही है जी गुल राणा जी की बात हो रही है, बिल्कुल। तो गुल जो कि आंटी ने आसिम मुझे- अजहर की वालदा भी हैं। हाँ जी बिल्कुल उनकी बात अभी। तो गुल आंटी ने मुझे कहा कि मीरा मुझे सना की कॉल आई है, तो तुम उसका नंबर ले लो, क्योंकि सना ने कांटेक्ट किया गुल आंटी को, आई थिंक जी, जी, वो फरियाद में काम कर रहे थे जी तब। बिल्कुल। तो कोई हमें साथ देखा, तो उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि तुम ना मीरा का नंबर डायरेक्टली ले लो उससे। तो फिर मेरी और सना की बात हुई उनके थ्रू, फिर मैं गई, ऑडिशन दिया, और वो भी नदीम बेग के सामने। बहुत मैं डरी हुई थी, लेकिन खैर फिर उन्होंने कहा कि बस ये, वो पहले से मुझे सब कहते तुम यमुना ऐसी लगती हो, तो फिर उन लोगों ने बोला कि बस ये यमुना ऐसी लगती है तो बस बहन बना दो इसे। और वो यू एस्ड योर ऑडिशन देन? क्योंकि पहले आप कह रही हो जो सजाद अली के टाइम पे आपने ऑडिशन दिया था, यू सेल्फ असेस्ड कि वो इतना अच्छा नहीं था। आई थिंक केवल ठीक था, नदीम बेग क्यों चूज करते हैं मुझे लेकिन अच्छा था थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा। हाँ